A very good morning, my dear students. How are you? So, students, I hope that you all are fine. And I was teaching you this chapter, rational number, and I gave you some homework of exercise 4A from question number 1 to question number 22. And I found that just a few have responded it properly and send their homeworks to me. Most of them have not turned and responded their homeworks. So there could be two reasons for this. First, you may not be able to understand what I have taught, or you are lazy enough that you don't complete your work. So in both of the cases this is not acceptable. If you have any doubt, then please do ask me. As of now, I cannot wait for your doubt, because if I keep waiting, then you will not ask me doubts, and I'll never be able to clear it, because until and unless you explain your doubts to me, how can I give you the solution? But as of now, for you, for my from my point of view, I'm just giving you the solution of some random questions. Not the solution, but the hint of some random questions that may be difficult, that you may find difficult from my perspective. Okay, so if I talk about this one, which of the following are rational numbers? So the basic requirement of a rational number is that there should be the form of p by q, and both p and q are integers, and q should not be equal to 0. So if I have to pick that out of these what are the rational numbers, then I would say that except this one and this one, everything is a rational number. Every number is a rational number, because in all the cases you can see that both the numerator and the denominator is an integer, and the denominator is not equal to 0. So are you done with the question number second? Write down in question number third, write down the numerator and the denominator of each of the following rational numbers. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बताना तो बहुत कठिन काम नहीं है, बता लोगे। ये तो ट्रस्ट में नहीं बताने वाली चीज़ है ना, आता ही होगा आपको। 8 न्यूमरेटर है, 19 डिनोमिनेटर है। क्लियर? फिर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ये जो थोड़ा सा पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्लास में। जैसे एक्सप्रेस 5/8 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 15 एंड -10। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो गिवन न्यूमरेटर है, गिवन और मेक की बात हो रही है। तो जो गिवन न्यूमरेटर है, जो भी गिवन न्यूमरेटर है स्टूडेंट्स, वो न्यूमरेटर को हमको 5 से कहाँ लेके जाना है, 15 पे लेके जाना है। तो इसलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मेक अपॉन जी, मेक अपॉन जी पे 15 बनाना है और 5 दिया हुआ है, यानी गिवन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो गिवन में जो भी है 5/8, when we'll multiply it with 3, we'll get 15/24। क्लियर? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकंड वाले के लिए, तुम्हें -10 बनाना है, यानी -10 से कहाँ जाना है, 5 से कहाँ जाना, -10 पे। वैल्यू क्या आई, -2। तो गिवन रैशनल नंबर को, यानी 5/8 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा, -2 से, एंड विल गेट -10 अपॉन -16। एनी डाउट स्टूडेंट्स? I hope that there will not be any doubt. So this is the procedure to do for the rest of the questions as well. Clear? Just for your sake, I'll help you in the toughest one. Here in this question, the question says कि यहाँ पे हमको denominator कितना चाहिए, -49 चाहिए। So यहाँ पे जो given denominator है वो is bigger than जो बनाना है, जो मेक करना है, बिकॉज गिवन क्या है 147 और मेक क्या करना है 49। सो ऐसे केस में डिवीजन का प्रोसेस चेंज हो जाता है, मतलब इसका प्रोसेस चेंज हो जाता है। क्या होता है, अब यहाँ पे हम g/m ना करके, हाँ m/g ना करके g/m करेंगे, राइट। तो g/m मतलब 147 डिवाइडेड बाई
49 यानी कि 3, यानी गिवन इक्वेशन को हमको 3 से डिवाइड करना होगा, गिवन रैशनल नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना होगा। गिवन रैशनल नंबर यानी क्या है 84 अपॉन माइनस 147 को हमें डिवाइड करना होगा 3 से, डिवाइड करना होगा 3 से। जैसे हमने इसको डिवाइड किया, सो इन न्यूमरेटर विल गेट 828 एंड इन डिनोमिनेटर विल गेट -49। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द अप्रोच ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। हियर इन क्वेश्चन नंबर 17 आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको मिनिमाइज़ करके लिखना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है, कुछ ऐसा अलग सा नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ है, तो फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ में देखो यहाँ पे अगर इसका डिनोमिनेटर 5 से 20 हो रहा है, यानी कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसी तरीके से -9 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे 4 से करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे। तो पहले ब्लैंक में जो फिल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा बताइए, पहले ब्लैंक में जो फिल होगा वो क्या होगा -36, ठीक है ना। इसको थोड़ा सेपरेट समझो, -9/5 इज इक्वल टू समथिंग मान लो x है अपॉन 20। मैंने कहा कि 5 को 20 लिखा गया है, यानी कैसे लिखा गया होगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 20 आएगा। सो सिमिलरली हमें यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आंसर जो है x इक्वल टू कितना आ जाएगा -36, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज़ और देखो, जब हमें -36 मिला तो -36/20 हो गया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से हमें आगे जाना है, कहाँ जाना है 27/x पे, ठीक। अब अगर हम इसको प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें टीडियस होंगी। तो इस प्रोसीजर से ना जा कर के हम लोगों को अपने बेसिक को याद रखना है। बेसिक को याद रखना है मतलब कि -9/5 से अगर मैं 27/x पे जाना है तो कैसे जाएंगे, -9/5 से 27/x पे अगर हमें जाना है तो -9 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया विल गेट 27। तो सिमिलरली जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो विल गेट 5 3 ज़ा 15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाले ब्लैंक में 15। सो दिस विल बी द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली बात आप लोगों को बच्चों याद ही होगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सेकंड के डिनोमिनेटर से होता है और सेकंड का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई फर्स्ट के न्यूमरेटर से होता है। यही कंसेप्ट हमें लगाना होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। कैसे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, सो जब हम लोग ने अप्लाई किया इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल, तो 13 × x विल बी इक्वल टू 6 × -65, ठीक है ना। देन जब हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 6 × -65 अपॉन 13, यानी 13 5 ज़ा 65, तो 6 5 ज़ा कितना आ गया फाइनली विद माइनस साइन -30 आ जाएगा, ठीक है ना। एनी डाउट? ठीक है, आई होप कि यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आप सबको। तो सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन नंबर 20 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, तो 21 में देखो क्या है कि पूछ रहा है कौन सा नंबर विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। सो सिचुएशन फिर वही, अगर आपको इक्वल पता करना है सो आपको इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा और देखना होगा कि वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। जैसे अगर हम इस वाले की बात करें तो जब हमने 8/-12 रखा और इसे कंपेयर करना पड़ा -10/15 से, तो हमें बस ये देखना कि क्या क्रॉस में वैल्यू सेम है या नहीं है। सेम है तो करेक्ट है, नहीं तो गलत है। तो 8 × 15 क्या इक्वल है -10 × -12 के। तो 8 15 सा कितना होता है भाई 120 होता है, और -10 × -12 कितना होता है 120 होता है। तो ये हमारा कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, और अगर फुलफ़िल कर रहा है तो ये दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल है। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये आप बता लोगे, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आगे मूव करते हैं फटाफट, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है रिप्रेजेंटेशन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पे। अब रैशनल नंबर तो आपको मालूम है कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर, बट यू मे नॉट हैव द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ रियल लाइन, राइट? So in the previous class we have learnt about how to represent integers on the number line। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आपने ऑलरेडी सीख रखा है कि इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? लेट अस रिव्यू इट, यानी जो प्रोसीजर सीखा था उसको पहले देख लेते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करते थे इसको रिप्रेजेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ इस फिगर को, तो देयर यूज टू बी ए नंबर लाइन, एक नंबर लाइन हुआ करती थी। नंबर लाइन के लोग नेमिंग कर देते हैं 0 A B C D E, देन A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश, और उसी के बाद हम लोगों ने एक नंबरिंग कर दी, यानी 0 से जब हम लोग राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो विल कॉल इट +1 +2 +3 +4 +5। जब हम लोग 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो विल कॉल इट -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ये माइनस वाला साइड हो गया और ये प्लस वाला साइड हो गया, ठीक है? ये होता था रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, जब हमें इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन करना होता था, ठीक है? बट राइट नाउ व्हेन वी ट्राई टू अटेम्प्ट with the same task with the in case of rational number। so जैसे मान लो एक रैशनल नंबर 1/2 है और एक रैशनल नंबर -1/2 है। अब जब इसे हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, just try to understand the solution। draw a line, take a point on it, let it represent O, let it represent 0, ठीक है ना? ये O नहीं, ये 0 है, ध्यान देना है, ठीक? पहला वाला पॉइंट जिसका नाम रखे हैं वो O है। इस पॉइंट को क्या क्या डेजिग्नेशन देंगे, क्या नंबर देंगे? वो 0 नंबर देंगे, ठीक है? सेट ऑफ यूनिट लेंथ OA एंड O डैश, OA एंड OA डैश respectively to the right and left of O, then A represent the integer 1 and A dash represent the integer -1, ठीक है? Now divide OA into two equal parts, let OP be the first part out of these two parts and the point P represent rational number 1/2 and OA dash to and again divide OA dash into two equal parts, let OP dash be the first part। खाली कहानी इसको समझो क्या करना है, ठीक है ना? एक सिंपल सी बात, एक लाइन लेनी है, हमने इसको O माना और पॉइंट को हमने क्या माना? 0 माना, ठीक है? अब हमने क्या किया कि हमने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे 1 और एक पॉइंट हमने मान लिया -1, ठीक? जिसको हमने 1 माना उसको हम लोग A कह देते हैं, जिसको हमने -1 माना उसको हम लोग A डैश कह देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 कहाँ पे है, अगर आपसे पूछूँ कि 1/2 को 1 को रिप्रेजेंट करो, आप कहोगे सर A है। मैं पूछूँ -1 बताओ कहाँ, तो आप कहोगे सर A डैश है। अच्छा, हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना? 1/2 रिप्रेजेंट करना, राइट? 1/2 के लिए क्या करेंगे कि ये जो टर्म है, ये जो मतलब लाइन है, इसको डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में। देखो मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो ये जो छोटा सा लाइन खींच के आएगा, इसको हम लोग P बोलें, तो ये जो P है, ये डिस्टेंस 1/2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा, ठीक है? अब थोड़ी सी प्रैक्टिकली की बात करते हैं। सर ये तो जो बुकिश में है आपने वो समझा दिया, हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली? So students, if we really want to understand it practically, just listen to one thing. If it's a number line, clear? This is 0, this is 1, clear? इसके अंदर छोटी छोटी लाइन पड़ी हुई है कुछ ऐसी। वेट अ मिनट, अब बताओ कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या ये कह सकते हैं कि हम इसकी पार्टीशन कितनी हुई है? आप कहोगे यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसकी पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6, 0 से 1 तक हमारा 6 इक्वल पार्टीशन हुआ है, यानी 6 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। अच्छा, अगर यही 3 पार्टीशन होता, 3 लाइन्स होती तो कहते 3 पार्टीशन हुआ है। नहीं सॉरी, 3 नहीं, अगर 2 लाइन्स होती तो कहते 3 पार्टीशन है, 4 लाइन्स होती तो कहते 5 पार्टीशन है। मतलब यू कैन चेक, यू कैन सी दैट, देख के पता चल जाता है कि कितने पार्टीशन है, राइट? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के बीच में 10 पार्टीशन हो,
ऐसा भी तो हो सकता है किसी के बीच में 10 पार्टीशन हो, जैसे अगर मैं छोटा छोटा पार्टीशन करना चाहूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी मैं एक्स्ट्रा जो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा पार्टीशन काउंट करो कितने हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10 पार्टीशन है। यानी कि पॉइंट नंबर 0 से पॉइंट नंबर ओ से नेमिंग कर देते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 पार्टीशन है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 10 पार्टीशन। और अगर मैं पूछूं कि इसका 5th पार्टीशन कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर इसका 5th पार्टीशन यहाँ पे है, राइट। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप 5th पार्टीशन कह लो या वो उस लाइन को कह लो, वो कहाँ पे आप वो चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली किस पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड साइड से 5 पे। टोटल पोजीशन कितनी है, 10 है। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 कर रहा है। और किसी को भी अगर रिप्रेजेंट कराना होगा तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, जैसे मान लो हमें 1/3 कराना है, 1/3 यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 तक है। हमने क्या किया, 3 पार्टीशन कर दिया, हमने 3 पार्टीशन कर दिया ना, पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3। पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 का मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है ये 1/3 होगा, ये पार्ट 2/3 होगा। यानी कि इस पूरे, अगर ये पूरा का पूरा लाइन 3 है, उसमें से 1, उसका 1 हिस्सा क्या है, उसका 1 पार्ट क्या है, ये वाला। अगर ये पूरी की पूरी लाइन 3 है तो उसका 2/3 पार्ट क्या है, ये वाला है, ठीक है ना। तो यही प्रोसीजर होता है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने का। बाकी सेम प्रोसीजर से देखो 2/3 भी होगा, सेम प्रोसीजर से 3 भी होगा। या एक काम करते हैं, आप एक काम करो, सबसे पहले ना इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, और खुद से ट्राई करने से भी नहीं समझ में आएगा। आप एक काम करो, जो आप प्रीवियस क्लास में सीखे हो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन इन योर प्रीवियस क्लास, इन क्लास 6, अभी जस्ट आपने क्लास 6 क्लियर किया और क्लास 7 में गए हो, तो आपके पास 6 की बुक्स वगैरह पढ़ी होगी या नोट्स पढ़ी होगी। आप उसमें से ये चेक करो कि इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब आप थोड़ा सा एक बेस बना के आओगे, थोड़ा सीख के आओगे ऑलरेडी, तो मुझे फिर इसको समझाने में बड़ी आसानी रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। सो फिलहाल आज का जो क्लासेस है वो आज का जो क्लास मैं वो यहीं फिनिश करता हूँ। इन चीज़ को अच्छे से पढ़ के, अच्छे से प्रिपेयर करके फिर नेक्स्ट क्लास में आप आना, तो फिर मैं आपको किसी भी रैशनल नंबर को मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी इशू आती है, और बेसिकली वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, वो एक्चुअली में इरैशनल नंबर होते हैं। तो अभी आपकी क्लास में 7th में तो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं नंबर लाइन पे। इरैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आएगा आपकी क्लास में, क्लास 9th में आएगा। एंड प्रायर टू दैट आपको ये बस फ्रैक्शन को देखना है, इंटीजर्स को देखना है, और नॉर्मली अगर कोई चीज़ आपका परफेक्ट स्क्वायर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब सीखना है। सो आई विल टीच एवरीथिंग बट लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका डाउट्स था प्रीवियस इसी के एक्सरसाइज वाले पार्ट ए में, वो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया, तो अपना होमवर्क का फटाफट कंप्लीट करके मेरे को सेंड करो। एंड इसके साथ साथ जो मैंने आज सिखाया है इसको रिवाइज कर लो, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।